Students, today we start with orthogonal curvilinear coordinates. Last time we did definition of curvilinear coordinates, or you can say basics about curvilinear coordinate. So in today's lecture, first we start with the definition of orthogonal curvilinear coordinates. If three coordinate surfaces through every point are mutually orthogonal, then the system of coordinate is said to be orthogonal. Or we can say if tangent planes are normal to the three surfaces through every point are perpendicular in pairs. That is, अगर हम तीन surfaces पे कोई भी थ्री टेंजेंट्स प्लेन और नॉर्मल हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है पेयर्स में, तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम. So in terms of curvilinear orthogonal coordinate system, let us we define a function u as xyz, phi1 xyz, v phi2 xyz, and w phi3 xyz. If we solve the system 1, we get the value of xy as function of uvw. So x can be written as psi1 function of uvw, psi2 uvw, and z is psi3 uvw. Or we have position vector r as x I cap plus y j cap plus z k cap. Put the value of x psi1 uvw I cap plus psi2 uvw j cap plus psi3 uvw k cap. Let us denote this as a vector f function of uvw, vector function uvw. So अगर हमने कोऑर्डिनेट कर्व निकालना है, लास्ट टाइम हमने कहा था इफ़ यू वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस वी गेट अ कोऑर्डिनेट कर्व. सो यू कर्व के लिए हमने किन दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन लेना है? v इज इक्वल टू वी नॉट का और w इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट. अगर हम इन दोनों का v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दो सरफेसेस का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमें कौन सा कर्व मिलता है? u कर्व. So here r vector is function of u v not w not, where u is only the variable, u changes, and v naught and w naught are the constants. So r is now function of u only. So tangent to u curve, how will you find tangent? Derivative. Tangent to u curve is parallel to the vector curly r by curly u. Similarly, tangents to w curve and v curve are also parallel to curly r by curly r vector by curly v, curly r vector by curly w. Now by definition of curvilinear orthogonal system, what we have? We have tangents at every point are mutually orthogonals. So tangent curly r by curly u dot curly r by curly v is equal to 0. Curly r by curly v dot curly r vector upon curly w is equal to 0, and curly r by curly w into curly r vector into curly u is equal to 0. So for curvilinear orthogonal system, we have tangent to any three surfaces through every point are perpendicular in pairs. So is it clear? Now unit vectors in orthogonal curvilinear coordinates. जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, इसी तरह हमने यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में. लेट अब हमने ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर e1 कैप, e2 कैप and e3 कैप be the unit vectors which are in the direction of tangents to u curve, v curve and w curve respectively. So if r is a position vector of any point p x y z, then curly r vector upon curly u क्या हमें represent करेगी? It represents the direction of tangent vector to u curve. और हमने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू यू कर्व। सो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो E1 कैप unit vector in the direction of tangent to u curve is curly r vector upon curly u upon modulus of curly r vector upon curly u. So let us call the modulus curly r by curly u as h1. So this will become, this is equal to 1 upon, so this is curly r by curly u into is equal to h1 into E1. So this we get. नेक्स्ट इज, सो ये मैंने गलत, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 1 अपॉन h1 की जगह आपके पास क्या आएगा, करली आर अपॉन करली आर वेक्टर अपॉन करली यू अपॉन h1. सो इसको करेक्ट करेंगे और E2 कैप क्या आएगा, करली आर बाय करली वी अपॉन h2. और ऐसे ही सिमिलरली व्हाट इज E3 कैप, करली आर वेक्टर अपॉन करली w upon h3. What is h1? h1 is modulus of curly r vector upon curly u, h2 is curly r vector upon curly v, and h3 is curly r vector upon curly w. So h1, h2, h3 are here the scale factors. So since E1, E2, E3 cap are mutually orthogonal unit vectors, so therefore आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मीन्स E1 का E2 के साथ ज़ीरो होगा, E2 का E3 के साथ और E3 का E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, और इटसेल्फ E1 डॉट प्रोडक्ट विद E1 इज इक्वल टू E2 डॉट प्रोडक्ट विद E2 इज इक्वल टू E3 डॉट प्रोडक्ट विद E3 एज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई E1 कैप दैट इज इक्वल टू करली आर वेक्टर अपॉन करली यू अपॉन h1, वेयर h1 इज मॉडुलस ऑफ curly r upon curly u. So we will correct this here. This is written to be wrong. This is also and this is also wrong. Next is similarly जैसे आपने टेंजेंट यूनिट वेक्टर्स निकाले उसी तरह नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स की, normal unit vectors, let capital E1, capital E2 cap and capital E3 cap be the normal unit vectors to the coordinate surfaces u equal to constant, v equal to constant and w is equal to constant. So अगर आपके पास E1 cap normal unit vector है u is equal to u नॉट सरफेस पे, तो आपके पास कैसे निकालते हो आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ सरफेस अपॉन मॉडुलस ऑफ द gradient of the surface. So it is E1 cap is equal to del u upon modulus of del 2. Similarly E2 is equal to del v upon modulus of del v, and E3 is del v del w upon modulus of del w. Next is the first article. If u v w are orthogonal curvilinear coordinates, then curly r vector upon curly u, curly r vector upon curly v, curly r vector upon curly w, and del u, del v, del w are reciprocal system of vector. अब व्हाट इज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, इसकी दो डेफिनेशंस थी. एक तो ये थी, इफ a डैश b डैश c डैश वेक्टर्स आर reciprocal to a vector, b vector, c vector, then a dash vector is equal to b cross c upon stp of abc. Similarly b dash vector is equal to c cross a upon stp of abc. और दूसरी डेफिनेशन ये थी कि a डैश का डॉट प्रोडक्ट a के साथ 1 है, a डैश का डॉट प्रोडक्ट b के साथ 0 और c के साथ 0. सिमिलरली b डैश का डॉट प्रोडक्ट b के साथ 1 है, बाकी a और c के साथ 0 है. इसी तरह सी डैश का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 1 है, बाकी 2 के साथ 0 है. तो हमने यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ किया. वी विल प्रूव दैट दे आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ करली आर वेक्टर इंटू यू बाय यू इंटू डेल यू इज़ 1 एंड करली आर वेक्टर अपॉन करली यू का डॉट प्रोडक्ट डेल वी डेल डब्ल्यू के साथ 0. सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट ऑफ करली आर वेक्टर अपॉन करली वी का डॉट प्रोडक्ट करली डेल वी का के साथ 1, दोनों के साथ 0. इसी तरह थर्ड का करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू डेल डब्ल्यू के साथ 1 और दोनों के साथ 0. सो लेट अस टेक
the proof. So let R vector is this, and replacing, we are working in curvilinear coordinates, so replacing x with xi1 function of uvw I cap, psi2 uvw j cap, and psi3 uvw k cap. So what is dr? Total change in dr is with respect to uv and w is curly r vector upon curly u du plus curly r vector upon d curly v dv plus curly r vector upon curly w into dw. This is the total change in r vector. So multiply this with del u, we will get del u dot dr vector is equal to del u, in सबके साथ del u dot curly r vector upon curly u into du, del u curly r vector in divide by curly v dv, curly del u dot curly r vector curly w into dw. Also we know that del of phi डॉट डी आर इज डी फाई. सो इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो डेल ऑफ यू डॉट डी आर क्या बन जाएगा आपके पास, डी यू. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया, डी यू. सो आपने क्या करना है, इसको इधर ले आओ डी यू को, और कंपेयरिंग इस ये जो 2 है इस पे कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को. अब इसका कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, सो यू विल गेट डेल यू डॉट करली आर बाई आर वेक्टर अपॉन करली यू 1. अब इसका जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो है ही नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू डी वी. सो आपके पास ये क्या आ गया, करली यू डॉट करली आर वेक्टर अपॉन करली वी इज 0. सिमिलरली इसका भी कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, तो इट कैन बी रिटन एज 0 इंटू डी वी डब्ल्यू डी डब्ल्यू. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट थर्ड curly del u, sorry, this is del u dot curly r vector upon curly w is 0. This is del u. So फर्स्ट हो गया क्लियर, ये रेसिप्रोकल है, इसका डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट वन के साथ 1 है, बाकी दोनों के साथ क्या है, 0. सिमिलरली हम क्या करेंगे, जहाँ हमने डेल यू से मल्टीप्लाई किया था वहाँ हम डेल वी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डेल वी डॉट डी आर को हम लिख देंगे डी वी. हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. फिर से हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स. सो इसका कोफिशिएंट डी यू का तो 0 है, सो वी विल गेट डेल यू वी डॉट करली आर वेक्टर अपॉन करली यू एज 0. उसके बाद इसका कोफिशिएंट इसके साथ यहाँ पे 1 है, सो वी गेट सेकेंड डॉट डेल वी डॉट करली आर वेक्टर अपॉन करली वी एज 1, और थर्ड वन का फिर से 0 है. सो सेकेंड प्रूव थर्ड. Similarly we can prove the third one also. सो डेल डब्ल्यू का डेल आर वेक्टर अपॉन डेल डब्ल्यू के साथ 1 है डॉट प्रोडक्ट, बाकी दोनों के साथ क्या है, 0. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शोज दैट दे आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स. सो दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन E1 वेक्टर, E2 कैप एंड E3 कैप विद डेल यू, डेल वी एंड डेल डब्ल्यू. अभी हमने किया था करली आर वेक्टर अपॉन करली यू, करली आर वेक्टर अपॉन करली वी, करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू, एंड डेल यू, डेल वी, डेल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल. सो डेल यू इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल वेक्टर की हम फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वो यूज़ करेंगे, ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी. सो इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे. सो डेल यू इज इक्वल टू करली आर वेक्टर करली वी करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय एस टी पी ऑफ द 3. सो वी हैव, हमने लास्ट टाइम ये डिराइव किया था. E1 कैप हमारे पास क्या था, करली आर वेक्टर अपॉन करली यू अपॉन मॉडुलस ऑफ करली आर अपॉन करली यू, और उस मॉडुलस को हमने H1 लिखा था. सो आपके पास वहाँ से आ गई वैल्यू करली आर वेक्टर अपॉन करली यू इज इक्वल टू H1 E कैप. सिमिलरली करली आर वेक्टर अपॉन करली वी इज H2 E2 कैप, and curly r vector upon curly w is H3 E cap. We will have value of curly r upon curly v as this, and curly r vector upon curly w is H3 E cap, and all the three here, H1 E1 cap, H2 E2 cap, H3 E3 cap. So जब हम
क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दोनों का तो क्या होगा, H2H3 तो कौन हमारे पास स्केलर्स है, सो आपके पास क्या आ जाएगा, सो आपके पास H2H3 तो स्केलर्स हैं, सो वी विल गेट H2H3 here outside and in between we have E2 cap cross E3 cap and E2 cap cross E3 cap आपके पास क्या आ गया, और E2 कैप क्रॉस E3 कैप आपके पास क्या होगा, E1 कैप। जैसे बिल्कुल आपके पास जैसे आप J कैप क्रॉस K कैप I कैप लिखते हो, इसी तरह E2 कैप क्रॉस E3 कैप हम क्या लिखेंगे, E1 कैप। सिमिलरली आपके पास H1 H2 H3 आपके पास स्केलर्स हैं, वो भी आपके पास STP से बाहर आ जाएंगे एंड इन बिटवीन यू हैव E1 कैप into STP of E1 cap, E2 cap and E3 cap. So what is STP of E1 cap, E2 cap, E3 cap is E1 cap dot product with E2, E3. So here I have calculated STP of the three. So you have E1 cap dot E1 cap, E2 cap cross E3 cap को आपने क्या लिखा, E1 cap. So it is 1. सो आपके पास क्या आ गया, E1 कैप अपॉन H1. सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज इक्वल टू डेल यू के इक्वल निकालना है आपने, E1 कैप डॉट डिवाइड बाय, सो वी हैव डेल यू इक्वल टू E1 cap upon H1. So E1 cap is H1 into del U. Similarly, we have E2 cap as H2 del V and E3 cap as H3 del W. So this is the relation between E1 cap, E2 cap, E3 cap and del U, del V and del W. So next is this I have written. Now what is relation हम इसको और अगर हम मॉडिफाई करें तो E1 कैप को हम कैसे लिखते हैं, E2 कैप क्रॉस E3 कैप, और E2 की अभी वैल्यू क्या हमने निकाली, H2 डेल V क्रॉस H3 डेल W. सो H2 H3 आउटसाइड, सो यू हैव डेल V क्रॉस डेल W. सो हम E1 कैप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. व्हाट इज E1 कैप, E1 कैप इज H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, और ऊपर हमने E1 कैप को क्या लिखा, H1 डेल यू. सो नेक्स्ट इज E2. अब आप देखो E2 कैप को हम कैसे लिखते हैं, E3 कैप क्रॉस E1 कैप, E3 कैप को हमने H3 डेल डब्ल्यू ऊपर से, और व्हाट इज E1 इज H1 डेल यू. सो कंबाइन करेंगे, सो इट इज H3 H1 del W cross del U. Similarly E3 cap is E1 cap cross E2 cap. E1 cap को हमने ऊपर से वैल्यू ली H1 del U और E2 की वैल्यू ली H2 del V. So we have H1 H2 del U cross del V. So again we have relation of E1 E2 E3 with del U del W and del V. Next article, derive an expression for del phi in orthogonal curvilinear coordinates. We have del phi as a vector which is equal to F1 E1 cap plus F2 E2 cap plus F3 E3 cap, and we have to find this F1 F2 and F3. हमने del phi को इस तरह से लिख लिया और हमने अब इसमें अननोन जो है F1 F2 F3 को निकालना है. Any change in R vector is written as curly R by curly U into du plus curly R by curly V into dv plus curly R vector upon curly W into dw. Again we have d phi को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन phi इज del phi डॉट dr. ये हमने पहले भी रिजल्ट यूज किया है. सो वी हैव del phi हमने लेट किया था F1 E1 कैप प्लस F2 E2 कैप प्लस F3 E3 कैप, और डी आर आपने ऊपर लिखा है टोटल चेंज करली आर वेक्टर अपॉन करली यू इंटू डी यू प्लस करली आर वेक्टर अपॉन करली वी अपॉन इंटू डी वी प्लस करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो E1 कैप डॉट E1 कैप 1 हो गया, E2 कैप डॉट E2 कैप 1 है, E3 कैप डॉट E3 कैप 1 है, और E1 के साथ E2 का 0 डॉट प्रोडक्ट, E2 का E1 के साथ और E3 का
E2 के साथ 0. So we are left with H1 F1 H1 du, F2 H2 dv, F3 H3 dw. So this is total change in d phi, and also d phi can be written as del phi upon del u into du, del phi upon del v into dv, del phi upon del w into dw. चेंज विद रिस्पेक्ट टू u v w इन phi. अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, सो वी विल गेट f1 h1 इज इक्वल टू del phi del u, f2 h2 इज इक्वल टू del phi del v, f3 h3 इज इक्वल टू del phi del curly phi upon curly w. सो व्हाट इज f1? f1 अननोन था, h1 तो स्केल फैक्टर हमें पहले से ही पता है. व्हाट इज h1? मॉडुलस ऑफ curly r वेक्टर अपॉन curly u. एंड व्हाट इज h2? मॉडुलस ऑफ curly r वेक्टर अपॉन curly v. एंड व्हाट इज h3? मॉडुलस ऑफ curly r वेक्टर अपॉन curly w. सो अननोन f1 f2 f3 आपके पास आ गया. सो f1 इज 1 अपॉन h1 curly phi upon curly u, f2 is 1 upon h2 curly phi upon curly v, f3 is 1 upon h3 curly phi upon curly w. So putting the value back, we have del phi as value of f1 e1 cap plus f2 e2 cap plus f3 e3 cap. So del phi is 1 upon h1 curly phi upon curly u e1 cap plus 1 upon h2 curly phi upon curly v e2 cap plus 1 upon h3 curly phi upon curly w e3 cap. So this is the expression of del phi, gradient of phi in orthogonal curvilinear coordinates. Next is arc length. Arc length, how will you define arc length in curvilinear coordinates? सो आर वेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं. पोजीशन वेक्टर f इज अ फंक्शन ऑफ u v w, वेक्टर फंक्शन u v w. टोटल चेंज इन dr इज curly f upon curly r upon curly u du plus curly r upon curly v dv plus curly r upon curly w dw. सो एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगा? ds, डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ds इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr with dr. So we will get dr dot dr is, this is dr. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे, वी आर वर्किंग इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स. सो आपके पास क्या होगा? करली आर वेक्टर अपॉन करली यू डॉट करली आर वेक्टर अपॉन करली वी 0 होगा. इसी तरह करली आर वेक्टर अपॉन करली वी करली आर वेक्टर इंटू करली अपॉन करली डब्ल्यू 0 होगा. और इसी तरह करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू इंटू करली आर वेक्टर अपॉन करली यू 0 होगा. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन पेयर्स. सो आपके पास यू आर लेफ्ट विद करली आर वेक्टर करली यू डी यू इन डॉट करली आर अपॉन करली यू डी यू इज करली आर वेक्टर स्क्वायर करली आर अपॉन करली यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू का स्क्वायर. सिमिलरली दिस इंटू दिस इज करली आर वेक्टर अपॉन करली वी का स्क्वायर इंटू डी वी का स्क्वायर. इसी तरह इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू का होल स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर. बाकी सारा क्या हो जाएंगे? 0. सो आपके पास डी एस स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर्क लेंथ क्या आ जाएगी? क्योंकि हमारे पास व्हाट इज करली आर वेक्टर अपॉन करली यू, that I will define as h1 e1 cap. सो इनका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? h1 e1 कैप का डॉट प्रोडक्ट h1 e1 के कैप. सो इट इज h1 स्क्वायर e1 डॉट e1 कैप डॉट e1 कैप इज h1 स्क्वायर. सो करली आर वेक्टर अपॉन करली यू का होल स्क्वायर h1 स्क्वायर के इक्वल होगा. तो इसी तरह आपके पास करली आर वेक्टर अपॉन करली वी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? h2 स्क्वायर के इक्वल. और करली आर वेक्टर अपॉन करली w का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? h3 स्क्वायर के इक्वल. सो वी विल गेट ds स्क्वायर एज h1 स्क्वायर du स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर dw स्क्वायर. सिमिलरली हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने जब आर्क लेंथ निकालनी होती है तो हम आर्क लेंथ को क्या डिफाइन करते हैं? डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी जेड का होल स्क्वायर. सो डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू किसने ले ली है? डी यू डी वी और डी डब्ल्यू ने.
और स्केल फैक्टर वहाँ पे क्या थे, H1 H2 H3 क्या है 1. So now let us denote ds1 is the arc length along the u curve. अब यहाँ पे 3 कर्व डिफरेंट हैं, u कर्व, v कर्व और w कर्व. तीनों के अलॉन्ग अगर हम आर्क लेंथ निकालें अलग अलग तो ds1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं u कर्व के अलॉन्ग. सो u कर्व के अलॉन्ग आपके पास क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ v और w सरफेस का, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस. सो उनका डेरिवेटिव dv 0 और dw 0. सो व्हाट इज ds1, वी आर लेफ्ट विद h1 स्क्वायर इंटू du स्क्वायर. इसी तरह ds2 इज h2 स्क्वायर dv स्क्वायर एंड ds3 इज h3 स्क्वायर dw स्क्वायर. ये u कर्व के लिए है डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ और ये v कर्व के लिए आर्क लेंथ और दिस इज फॉर w कर्व. सो नेक्स्ट इज वॉल्यूम एलिमेंट. वॉल्यूम एलिमेंट में हमने क्या किया, हमने जो आर्क लेंथ ds1 निकाली थी u कर्व के अलॉन्ग, दिस इज u कर्व, इसको हमने, ये हमारे पास क्या आई थी h1 हमने जो निकाली थी वो क्या आई थी, आर्क लेंथ ds1 स्क्वायर निकाला था, ये आपने निकाला था यहाँ पे, वो क्या आ गया था h1 du का होल स्क्वायर. या फिर अगर इससे ऊपर स्टेप पे जाऊँ तो ये आपके पास आ गया था करली ds1. अगर हम इसको ओपन ना करें तो ds1 हमारे पास क्या आया, करली r बाय करली u का होल स्क्वायर इंटू du का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज ds1, करली r बाय करली u इंटू du. सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, करली r बाय करली u इंटू du. एंड व्हाट इज करली r बाय करली u, करली r बाय करली u इज h1 e1 कैप. सो आर्क लेंथ अलोंग u कर्व जो आपके पास आई थी एट एनी पॉइंट p वो क्या थी, h1 e1 कैप du. हमने क्या किया, इस आर्क लेंथ को अप्रॉक्सीमेट कर लिया कि ये जो आर्क लेंथ है ये इसकी ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वॉल्यूम का ये वाली साइड रिप्रेजेंट. इसी तरह ये आर्क लेंथ जो आई थी v कर्व के अलॉन्ग उसको हमने इस साइड से अप्रॉक्सीमेट कर लिया तो ये आपके पास क्या आ गई h2 e2 कैप. और ये जो आर्क लेंथ आई थी इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया इधर h3 e3 कैप dw. तो अब आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा, dx इंटू dy इंटू dz. सो वॉल्यूम इज STP ऑफ dx मीन्स जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हम dx dv dy dw लिखते, dz लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ds1 ds2 एंड ds3. अलग अलग 3 सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वॉल्यूम इज dv इज इक्वल टू STP ऑफ दी ds1 ds2 एंड ds3. सो ds1 किसके इक्वल था, h1 e1 कैप du, एक एज का, सेकेंड एज STP होता है ना, वॉल्यूम होता है STP ABC क्या होता है, एज, लेंथ ऑफ एजेस. सो लेंथ ऑफ एजेस आपके पास फर्स्ट एज की लेंथ ये थी, सेकेंड एज की लेंथ ये थी और थर्ड एज की लेंथ आपके पास ये थी. अब STP क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C. सो वही लिखा है आपने, दिस इज A डॉट B क्रॉस C. सो इसमें आप कैसे करोगे, अब आपके पास h2 h3 तो आपके पास dv और dw जो है वो स्केलर्स हैं, उनको बाहर लिख लिया. सो यू विल गेट e1 कैप डॉट प्रोडक्ट विथ e2 क्रॉस e3, e2 क्रॉस e3 अगेन e1 कैप. सो e1 कैप इज 1. सो वी हैव h1 h2 h3 dw dy dw du and dv. So this is the volume representing in orthogonal curvilinear coordinate. Next is area element. So let dA1 is the area of parallelogram formed by ds1 and ds2 along u and v curve. So what is length of ds1 along u curve is h1 e1 cap du. इनका क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ले रहे हैं ना, a क्रॉस b आएगा मॉडुलस. सो b की लेंथ क्या है, h2 e2 dv, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया. h1 h2 स्केलर्स हैं आउटसाइड, du dv आउटसाइड. सो यू आर लेफ्ट विद मॉडुलस ऑफ e1 क्रॉस e2, e1 कैप क्रॉस e2 कैप, e1 कैप क्रॉस e2 कैप इज e3 कैप, मॉडुलस इज 1. सो यू हैव एरिया एलिमेंट एज h1 h2 du dv. सो दिस कंप्लीट्स. सिमिलरली अगर आपने dA2 निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ds2 एंड ds3 along
V एंड W कर्व वो आपके पास आ जाएगा H2 H3 DV DW। सो सिमिलरली AD3 आप निकाल सकते हो। सो थैंक यू, दिस कंप्लीट्स ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर हाफ पार्ट। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।